নীলাচলৰ বুকুত যি মা কামাখ্যা মন্দিৰ আছে সেই মা কামাখ্যা মন্দিৰত এতিয়া ভক্তৰ লানি নিচিঙা ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিয়নো যি অম্বুবাচী মেলা সেই অম্বুবাচী মেলা মা কামাখ্যাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ শক্তিপীঠ আছে সেই শক্তিপীঠৰ ভিতৰত অন্যতম যি মহাশক্তিপীঠ আছে সেয়া মা কামাখ্যা শক্তিপীঠ, আৰু যাৰ বাবে আজি এই মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আজি বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা এনেধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ ভক্তসকল আহি আজি মা কামাখ্যাৰ চৰণত আশীৰ্বাদ লৈছে। কিয়নো এই সময়ত যি মা কামাখ্যা বহু শক্তিশালী হৈ থাকে, আৰু এই সময়তেই মাৰ আশীৰ্বাদ যি আশীৰ্বাদ বিচাৰে সেই আশীৰ্বাদ যদি যিসকল ভক্ত আছে সেই ভক্তগণে যদি মনে প্ৰাণে যদি কিবা আশীৰ্বাদ বিচাৰে, সেই মাৰ চৰণত যদি সেই আশীৰ্বাদ বিচাৰে তেনেহ'লে সেই আশীৰ্বাদ পূৰ্ণ হয়। আৰু সেইবাবে এনেধৰণৰ যিসমূহ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দেশ বিদেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ ভক্তগণ আছে সেই ভক্তগণসকলে আজি এনেধৰণৰ মাৰ আশীষ বিচাৰি এনেধৰণৰ যি মা কামাখ্যা মন্দিৰ আছে সেই মা কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈছেহি। আপোনালোকে দেখি আছে এয়া যিসমূহ ভক্ত আছে মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰত আহি আজি এনেধৰণৰ মা কামাখ্যাৰ চৰণত এনেদৰে আশীষ বিচাৰিছে, আৰু যাতে যিসমূহ নিজৰ মাৰ চৰণত যিসমূহ তেখেতসকলে আশীৰ্বাদ বিচাৰিব সেই আশীৰ্বাদ যাতে সফল হয় তাৰ বাবে আজি এনেধৰণৰ ওলাই আহিছে মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি। কিয়নো যিসমূহ 51টা যি ভাৰতত যিসমূহ শক্তিপীঠ আছে সেই শক্তিপীঠৰ ভিতৰত অন্যতম শক্তিপীঠ হৈছে সেয়া মহাশক্তিপীঠ হৈছে সেয়া মা কামাখ্যা মন্দিৰ, আৰু যাৰ বাবে আজি এনেধৰণৰ যিসমূহ ভক্তগণ আছে মাৰ চৰণত আশীষ বিচাৰি কিয়নো যি অম্বুবাচী মেলা, আৰু এই অম্বুবাচী মেলাৰ সময়তে আজি মাৰ আশীষ বিচাৰি এনেধৰণৰ মা কামাখ্যাত আজি উপস্থিত হৈছেহি ভিন্ন ৰাজ্যৰ নাইবা ভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ ভক্তগণ আছে তেখেতসকলে আজি আহি এনেধৰণৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। মাৰ আশীষ ল'লে কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, সঁচাকৈ ভাবি আছিলোঁ কেনেকৈ যাম কেনেকৈ আহিম, কিন্তু আহি কিনে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু কোনো ভাগৰ লগা নাই। তেনেকৈ মানে গোটেইখিনি মানুহ দেখিছোঁ, সেইকাৰণে মানে বহুত মানে শান্তি পাইছোঁ। আৰু এই মা কামাখ্যাৰ যি মহামিলন, যি অম্বু আৰু বাচি, অম্বু হ'ল পানী আৰু বাচি হ'ল যি মহাযুগ, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'বনে? আজি মাৰ আশীৰ্বাদ কিয় বিচাৰিলে, সেই অম্বুবাচীক লৈ কিয় বিচাৰিলে? আজি কিয় বিচাৰিলোঁ মানে মা আমাৰ প্ৰতি যুগৰ পৰাই মানে চলি আহিছে। এতিয়া আমি যিটো দেখিছোঁ যিটো শুনিছোঁ মানে সেই জাগ্ৰতখিনি মানে কৰাৰ কাৰণে বা ল'ৰা ছোৱালী আগন্তুক লাগি সিহঁতে কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰে, কেনেকৈ মানে প্ৰকৃতিৰ লগত বা তেনেকুৱাকৈ আমাৰ মানুহখিনিৰ লগত মিলি তেনেকুৱাকৈ জানি কিনে থাকিব পাৰে, সেইখিনিৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। যিহেতু এতিয়া সমাজত নাৰী হয়তো কোনোবা ক্ষেত্ৰত কোনোবাত সুৰক্ষিত নহয়, সেই ক্ষেত্ৰতো কি ক'ব? সেই ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে আমি নিজে সজাগ হ'ব লাগিব, আৰু ল'ৰা ছোৱালীক সদায় তাৰমানে মাক দেউতাকৰ লগত অনাটো আমি বিচাৰোঁ। তেনেকুৱাকৈ গাৰ্জেন আহিলেও লগত মানে শুশ্ৰূষা বা ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি কেনেকুৱা আমাৰ ভাৱ ধাৰণাবিলাক আমি বুজি ল'ব ঘৰতে লাগিব, তাৰে পাছত আমি পঠাব লাগিব। তলৰ পৰা বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহিব লগা হৈছে? হয়, বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, আৰু যোনপিনে আহিছোঁ সেইপিনে আমাক আহিব দিয়া নাই। কোনপিনে আহিছোঁ কেনেকৈ আহিছোঁ নিজে গম নাপাওঁ, মানে এনেকুৱা হৈছে। হয়, আহি কিনে মাক পাইছোঁ, সেইখিনিয়ে যথেষ্ট, এইখিনিয়ে ক'ব লগা। माँ कामाख्या का सबसे बड़ी महिमा ये है, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता, माँ कामाख्या सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, इसलिए जनता आती है। बाकी के नज़रमंद जो जादू टोना होता है वो एक अलग होता है। माँ कामाख्या एक माँ पार्वती है, यहाँ स्वयं रहती है, और महादेव स्वयं रहते हैं। और ऐसे हिंदू संस्कृति में कहा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये देवी है, ऐसे कुछ विज्ञान नहीं मानते हैं तो भी मानना पड़ेगा। साइंस अलग शब्द है, शास्त्र अलग शब्द है। जैसे एक
पुतला अलग शब्द है, मनुष्य अलग शब्द है, भूत अलग शब्द है, भविष्य अलग शब्द है, वर्तमान अलग शब्द है। भूते न भविष्य न वर्तमाने, ये तीन का तीन काल है। ऐसे माँ भविष्य में कार्य कर रही है, न भूतकाल न मतलब भविष्य में, है न स्वयं। तो उसी प्रकार से माँ मासिक धर्म में जब होती है तो यह सभी रूपों में प्रकट रहती है। जैसे आम का पेड़ फूल आएगा तभी ना फल लगेगा, तो ऐसे माँ मासिक धर्म में रहती है ना, तो फलदायक सभी जनता को, सभी ऋषि मुनि को फल देती है। इसलिए सभी लोग आते हैं। जहाँ फल नहीं होगा वहाँ कौन जाएगा, है ना। आप भी जिस स्त्री से बच्चे पैदा नहीं होंगे तो क्या उसको रख लेंगे आप? रखेंगे, पर मन में तो रहेगी ना बच्चे आस्था का। तो उसी प्रकार से ये माँ फलदायक है, सभी को फल देती है, सभी का मनोरथ पूर्ति करती है। जय श्री राम। जो अम्बुबासी है, अम्बु और बासी का अर्थ क्या है? अम्बुबाची ए ना माँ, जिसे हम कहते हैं आपका शादी हो गया, बोलते आपका शादी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अभी आप कुंवारे हैं, कुंवारा और शादीशुदा, जैसे एक स्त्री से शादी कर लिया तो शादीशुदा हो गया, और वही व्यक्ति शादी नहीं किया तो कुंवारा हो गया। इसी तरह से माँ का अम्बुबाची है ना, अम्बा माने माँ, वाची माने सभी को कल्याण करने के लिए बैठी हुई है। बाबा आपका नाम? जय श्री राम स्वामी। कहाँ से आए हैं? हम ऊपर से आए, नीचे आए। आप देख रहे हैं ये माँ कामाख्या मंदिर में अभी माँ अम्बुबासी मेला का आयोजन किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में ये अमावती रात, ये अमावती कोसी अमावस्या जो इसको बोला जाता है, कोसी अमावस्या। वो बोलो तो गुवाहाटी में यही एक मंदिर है जो कि आधा शक्तिपीठ, ये कहीं न ये है। इसके लिए जो अमावती रात का जो हमारे साधु सन्यासी, हमारे ब्राह्मण लोग, जो तंत्र विधियाँ, जो गुरु मंत्र जो पढ़ा जाता है, वो यहीं से पढ़ाई का सीखने की यहीं से होता है। मतलब यहाँ से जो सीख गया वो पास है। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो कोई पास भी हो जाते हैं, कोई फेल भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल। तो ये पढ़ाई है, ये गुरु का पढ़ाई, मतलब ये कामाख्या का पढ़ाई है। और यहाँ से जो पढ़ाई कर चुका वो मेरा अंदाज है कि वो पास ही रहेगा, क्योंकि ये तंत्र विद्या आप देख रहे हैं, जितना हमारे ब्राह्मण लोग अपना बोई किताब लेके जितना भी पढ़ रहे हैं वो अपना पास होने के लिए पढ़ा। ये है, इसके लिए अमावती कोसी अमावस्या, इसके लिए मेला चालू होता है ये। और ये जो अम्बुबासी है, अम्बुबासी, अम्बु और बासी का तात्पर्य अर्थ क्या है? अमावस्या वही जो एक दिन का, आज का रात जागरना पड़ेंगे। आज का रात हमारे ब्राह्मण लोग सब अपना अपना तंत्र विद्या का अपना अपना जो मंत्र पढ़ेंगे, गुरु मंत्र हो या गायत्री मंत्र, भागवती गीता जो भी पढ़ेंगे, वो आज पढ़ के ही अपना मनोकामना, मतलब अपना मेरा मन की बात जो वो काम सफलब्ध हो, इसके लिए उन लोग का यहाँ आना होता है। उसके लिए है ये कोसी अमावस्या, उसके लिए बोला जाता है। कल माँ कामाख्या दरवाज़ा खोलेगा, इसमें क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा? इसका तो मेन फेमस, इसका मेन जो है माँ का जो जूनी माँ का जो मेन है, जो कि यहाँ को उसका भोग है, मेन प्रसाद है, जो कि कपड़ा मेन फेमस वो है। उसके बाद जो वहाँ का जो जल है, जो उसके माँ के पास में जो एक समुद्र दिखाई देता है, उसका भी जल बहुत बड़ा खूबी है। अगर जो किसी का घर में कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं हो रहा है, बहुत साल से काम बिगड़े जा रहा है, अगर मैं इस चीज़ के लिए मैं चैलेंज करता हूँ, अगर यहाँ का आप कपड़ा लेके जाओ, आपका मनोकामना नहीं पूरा हुआ तो फिर मेरे साथ अगले साल आओ, हमसे बात करो। ये मेरा सनातनिया में ये मेरा बहुत बड़ा ये माँ की खूबी है। ये कलयुग में ओपन हम लोग देख रहे हैं, वो देख रहा था नहीं, लेकिन आजकल मैं ओपन देख रहा हूँ कि माँ है, क्योंकि उसके लिए प्रसाद पाने के लिए इतना लोग भीड़ लगा रहे हैं, जो कि मंदिर बंद भी है, फिर भी यात्री हमारे भक्त लोग माँ का दर्शन के लिए, उसका चरणों में आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए उसको सोच और उसका भाव, वो भाव कौन है? माँ है, हम नहीं, भाव लाने वाला माँ है। क्यों? वो बुलाते हैं तो आते हैं, क्योंकि जो प्लेन से भी आ रहे हैं वो भी माँ के पास आ रहे हैं, और जिसके पास कुछ नहीं भी वो भी आ रहे हैं, और जिसके पास है वो भी आ रहे हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी आ रहे हैं। क्यों? उसका पर भाव है,
भाव किसके पर में? माँ के पास में है, क्योंकि गुरुदेव माँ गुरु, जैसे हम लोग साधु सन्यासी, हम लोग गुरु भिक्षा ले रखे हैं, तो हम लोग कुछ भी काम करते हैं गुरु के नाम से ही करते हैं। तो जो गुरु का नाम से जो काम कर लिया है वो सफल ही रहेगा, क्योंकि वो गुरु ने हम लोग का आशीर्वाद दिया है। तब हम लोग आज बैठे हैं और हमारे आश्रम है जूना खेड़ा। मेरा नाम है सुधीर गिरी महाराज जी। कहाँ से? मैं कलकत्ता से हैं। तो देखिए, एक धर्म के बारे में एक बात पूछना था। जो हम लोग हिंदू धर्म में सभी धर्मों को मतलब सभी धर्मों को सही तरह से पालन किया जाता है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो इस देश में लेकिन धर्म को लेके बहुत कुछ हलचल होता है, बहुत मतलब क्या क्या नहीं होता है धर्म को लेके, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, धर्म की बात क्या है बाबू, देखो तूने फोन किया था मुझे, बिगाड़ रहे हैं तो हम लोगों ने। आज वर्ल्ड में, फोन किया था पूरा वर्ल्ड में, या हमारे भारत ने, अमेरिका, साउथ अमेरिका जो कि हमारे इस्लाम कंट्री है, मैं वहाँ पे भी गए तो मेरा विवेका स्वामी का तस्वीर देखा। हमारे इस्लाम धर्म उसको तस्वीर का माला देते हैं, क्योंकि बढ़ाए तो मेरा संत लेके ही बढ़ रहा है। बिना संत के लिए, बिना गुरु कृपा नहीं होता है। तो आज मेरा भारत बढ़ रहा है तो मेरा संत के लिए आगे बढ़ रहा है। और हम लोग इतना टैंट हैं, इतना पाबंदी में हम लोग ये मंदिर चलाने के लिए हम लोगों ने पूरा ताकत लगा रहे हैं कि कोई चीज़ का कमी नहीं होने दूंगा। और जो भी कमी हो, हमारे अखाड़े में एक से एक मांग पड़े हैं, वहाँ पे आप लोग कंप्लेन दो। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए हेल्प के लिए हम लोग बैठे रहता हूँ। 24 घंटा हम लोग यहाँ मिलूँगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सेवा पाने के लिए भी जैसा भी हो वो हमारे अखाड़ा से हम लोग देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वो जब भी हो, ये मेला जब भी आते हैं तब से हम लोग 1 महीना पहले से हम लोग तैयारी करते हैं कि नहीं, हमारे पास में हमारे भक्त लोग आएंगे उसके लिए, सेवा के लिए। जहाँ तक अभी सब सोच है वो बाबा लोग उसके सेवा के लिए 3 टाइम का भोजन के लिए व्यवस्था देते हैं। और मैं चाहता हूँ मेरा सनातनियों, जो कंस लड़ाई किए थे कृष्णा से, कंस लड़ाई किए कृष्णा से, उसको क्या हुआ? और राम से युद्ध किए थे रावण, उसको क्या हुआ? अगर जो मेरा सनातन धर्म से पंगा लेगा तो उसको क्या होगा? वही होगा जो रावण का हुआ। अभी मैं प्रमाण देता हूँ आप लोगों के पास। अभी अगर सबके पास मोबाइल है, स्क्रीन टच फोन सब बच्चे के पास में है। अगर आप देखने चाहो तो महाभारत आप लोग देखो, तो आप लोग का मालूम पड़ेगा कि सनातन धर्म क्या चीज़ है। उससे पूरा मैथिली में से आ जाएगा, इसमें हमारे बोलने के कोई शंका नहीं। वो हर कोई देखो महाभारत, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सनातन धर्म क्या चीज़ होता है। अंतिम प्रश्न है, भक्त को क्या मार्ग देंगे आज? भक्त को जो मतलब हिंदू धर्म के जो भक्त है, तो इस भक्त को लेके क्या मार्ग दिखाएगा? क्या इसको कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब अपना धर्म में रहो। भगवान कोई सा भगवान, या कृष्णा का मानो, महादेव का मानो, काली का, जो भी मानो, लेकिन धर्म में जाओ। हम ये नहीं बोलते हैं कि तुम ये करो वो करो। हमारे आज लोग बोलते हैं कि हमारे इस्लाम धर्म बढ़ रहा है और हमारे इस्लाम धर्म बड़ा सनातन बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, ये दोनों का बीच में टकराव हो रहा है। लेकिन ये हम लोग भूल है, हम लोग नहीं सोचेंगे इसके लिए। तो हम भगवान के लिए, हम भगवान का मानेंगे। हमारे सनातनियों से हमारे ईसाई बना, ईसाई वो भी हमारे सनातनी से हुआ है। लेकिन देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं अभी, उन लोग के खाने पीने का क्या रूल्स है। लेकिन वो हम देखो, अभी जाके देखिए उन लोगों के घर में, ईसाई के घर में वो लोग क्या भोजन देता है, क्या वो बाबा लोग से चलेगा क्या? तो देखिए सनातन में ऐसा भेदभाव चल रहा है। लेकिन उसे छोड़ो, हम सबका बोलते हैं, जितने भी मेरा भारत देश का निवासी है, इस्लाम धर्म तक का भी बोलते हैं, अगर मेरा भारत देश के पानी पी रहे हैं तो मेरा भारत देश का नारा लगाइए, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद। तो आप भारत देश में विकास कर सकोगे। नहीं तो आने वाला टाइम में यहाँ विकास का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रहेगा तो सनातनीय रहेगा, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। ये हम लोगों ने पूरा मन में ठाना है और हमारे भारत सरकार हम लोगों के साथ दे रहे हैं, वो हर चीज़ में हम लोगों का साथ दे रहे हैं। मठ मंदिर के लिए वो आगे है, इसके पीछे हम लोग क्यों नहीं रह सकते हैं? तो हम लोग सन्यास है, हम लोग का मठ मंदिर लेके ही चलना है, जो भी काम करना उसी के लेके चलना है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सनातन आगे बढ़े, और मैं चाहता हूँ कि आने वाला टाइम पूरा सनातन ही आगे बढ़ेगा।
इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देते हैं। जितना मेरा भक्त लोग हैं आने जाने वाला, जितने हमारे कामाख्या का भक्त हैं, उसके लिए सबके लिए मैं बधाई देता हूँ कि आने वाला टाइम में आप लोग बराबर आओ। आप लोगों का कोई चीज़ का तकलीफ नहीं आने दूंगा। ये जूना खेड़ा वाले बाबा लोग बोल रहे हैं, नागा बाबा लोग हम लोगों ने बोल रहे हैं, कभी तकलीफ नहीं आने दूंगा। आप लोग आओ, कोई दिक्कत है तो महाराज जी लोग बैठे हैं, आप लोग कंप्लेन बोला, उसके लिए सुनने के लिए हम लोग रेडी है। इसके लिए सबके लिए जितना भक्त हैं सबके लिए धन्यवाद। अब माँ का प्रसाद लेके जाइए, माँ का सेवा करते जाइए और किसी का बात में न हो, आराम से आइए और आराम से अपना अपना घर पहुँच जाइए। कोई भी स्टेट से आइए, नेपाल, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बम्बई, दिल्ली, कहीं से हमारे भक्त लोग आए, आराम से सुरक्षित से उन लोग का जाने का हम काम करते हैं कि उन लोग अच्छा से पहुंच जाए, ताकि यहाँ का फिर हमारे नाम हो क्या हमारे सन्यासी बाबा जी जूना खेड़ा से हम लोगों ने कहना सेवा दिया। बाबा, भारत में 51 शक्तिपीठ है, लेकिन जो महाशक्तिपीठ है वो माँ कामाख्या मंदिर है। इतना सारा भक्त अभी इधर आ रहा है माँ कामाख्या के दर्शन के लिए, क्यों आ रहा है और क्यों महाशक्तिपीठ बोलते हैं? ये 51 शक्तिपीठ में ये माँ कामाख्या बहुत सिद्धि शक्तिपीठ है, इसीलिए यहाँ जितने लोग भक्तजन आ रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम 15 दिन से भक्त लोग आ रहे हैं। इतने लाखों पब्लिक आ रहे, लेकिन इतना गड़बड़ नहीं, इतना घुड़दड़ नहीं, इतना सीधे सादा दर्शन, माँ की दर्शन इतना बहुत सुंदर हो रहे हैं। कितने भक्तजन आ रहे हैं, किनको भी टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए सभी का प्रबंध है। बहुत बड़ा शक्तिपीठ है ये। ऐसा शक्तिपीठ तो हमारे ये जगत में कहीं भी नहीं है। ये ऐसा शक्तिपीठ है कि यहाँ पर ध्यान, जप, तप, नेम करने से यहाँ माँ प्रसन्न होती है, माँ की आशीर्वाद मिलता है। माँ प्रसन्न होके भक्तजनों को सबका कल्याण करेगी। ये हम आया है कर्नाटका, बीदर जिले कौटा के, हमारा वैष्णो देवी शक्तिपीठ आश्रम है हमारा। माँ भगवती सबका कल्याण करे। जय माता दी, जय माता दी। जैसे कि माता जी आप देख रहे हैं कि अभी माँ कामाख्या मंदिर में बहुत सारे भक्तगण आ रहे हैं, बहुत विभिन्न तरह से आ रहे हैं अभी। तो 51 जो शक्तिपीठ है इस भारत में, लेकिन जो शक्तिपीठ बोलते हैं माँ कामाख्या मंदिर, क्यों और कैसे, और कुछ बता सकते हैं? जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, नमो नारायण। मैं महामंडलेश्वर कालिंदी नंदगिरी अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो कि हमारी आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनकी शिष्या दिल्ली से आई हूँ। और देखिए, माँ कामाख्या को इसलिए शक्तिपीठ ज़्यादा इसका महत्व है क्योंकि कहते हैं जब अम्बुवाची का पर्व होता है, इस दौरान माँ रजस्वला होती है, तो इस टाइम पर जितना भी माँ 10 महाविद्या हैं वो एकत्रित, और जितना भी 51 शक्तिपीठ का शक्ति है वो सब इस टाइम पे यहाँ पर एकत्रित होता है। क्योंकि एक संपूर्ण शरीर बनकर ही माँ प्राकृतिक रूप है, नारी रूप है, और जो रजस्वला होगा तो जितना भी माँ का अंग होता है वो इस समय पर एकत्रित होकर एक नारी के रूप में माँ का गर्भगृह में विराजमान होता है। जो अम्बुबासी का तात्पर्य अर्थ क्या है, कुछ बता, भक्त को बता सकते हैं? देखो, माँ एक प्रकृति स्वरूपा जगदम्बा है। जैसे अपने को बहन है, माँ है, जैसे उनको पेरेट आते हैं वैसे माँ को ही पेरेट आता है। और ये रजस्वला जो उत्सव है ये भक्तों के कल्याण के लिए, जहाँ प्रकृति ने मनुष्य को जन्म दिया है, प्राणी मात्रा को जन्म दिया है, वही प्रकृति स्वरूपा महामाया जगदम्बा ये बैठी है और उसका ये रजस्वला होता है। ক'ৰ পৰা আহিছে মানে? আমি হাজোৰ পৰা আহিছোঁ। হাজোৰ পৰা। হয়। কেনেকুৱা লাগিছে মাৰ আশীৰ্বাদ? এইবাৰ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ মানে, খুবেই ভাল লাগিছে। যিহেতু বহুত দূৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিব বহুত দূৰৰ পৰা খোজকাঢ়িব লাগিছে। এইবাৰ 3 কিলোমিটাৰ বেছি খোজকাঢ়িব লগা হৈছে, সেইটো অকণমান কষ্ট হৈছে, কিন্তু আহি খুব ভাল লাগিছে। মাৰ এই যে অম্বুবাচী মেলা কিয় পালন কৰা হয়, কিবা? মা এইটো সময়ত ঋতুমতী হয়, সেয়ে অসমবাসীয়ে মানে মাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব আহে আৰু। অসমবাসীৰ বাবে কি প্ৰাৰ্থনা জনাবনে? মাৰ আশীৰ্বাদ আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলো অসমবাসীলৈ মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। সকলোৱে কুশলে থাকক।
কেনেকুৱা লাগিছে আজি মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহে? যথেষ্ট ভাল লাগিছে। বহু দিনৰ পৰা আশা এটা পুহি ৰাখিছিলোঁ, এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ মানে। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই নাৰেংগীৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, যিহেতু বহু দূৰৰ পৰা আপোনালোকে খোজকাঢ়িব আহিব লগা হৈছে, এই তথাপিও আহিছে, ইয়াৰ শক্তিৰে এটা ভক্তি নেকি? নিশ্চয়। আৰু ভক্তিৰে শক্তি নেকি? হয় 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 হয়। যিহেতু এই সময়ত মা কামাখ্যা বহুত শক্তিশালী হৈ থাকে, এই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী নাৰী হিচাপে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? মানে কিয় এই মা কামাখ্যাৰ যি অম্বুবাচী কিয় ইমান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবে আজিৰ দিনটোত? এই শক্তিপীঠ যিহেতু সকলোৱে মানেই, বিশেষ ক'বলগীয়া নাই আৰু। যিহেতু আপোনালোকে বহু কষ্ট কৰি আজি মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিলে, কি আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে আজি? ইয়াত মই সমগ্ৰ ৰাইজৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। গোটেই জাতিৰে মংগল হওক, গোটেই ভাৰতৰ, গোটেই অসমৰ, আমাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ যাতে মংগল হয় সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিহেতু এতিয়া মানে অম্বুবাচীৰ আজি অন্তিম দিন, আমি বহুত আশা কৰি আহিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে, মানুহখিনি লগ পাইছোঁ তেনেকৈ। আৰু অম্বুবাচীৰ যি অলপ তাৎপৰ্য সেয়া তাৰ বিষয়ে অলপ দৰ্শকক কৈ দিব নেকি? অম্বুবাচী আমাৰ বসুমতী, আমাৰ যেতিয়া এইটো আমাৰ নাৰী জাতিৰ এইটো যিটো আমাৰ হেৰি আৰু প্ৰতীক এটা, এইটো সময়ত আমাৰ বসুন্ধৰা আমাৰ হেৰি ঋতুমতী হয়। গতিকে আমি নাৰী জাতিৰ শক্তিটো ইয়াত আপোনাৰ মানে পৰিলক্ষিত হয় আৰু গতিকে আমি মানে সেইকাৰণে এইটো পূজা কৰোঁ। এইখিনি সময়ত আমাৰ কামাখ্যা মাক পূজা কৰি, আৰু আমি নাৰী জাতীয় মানে আৰু যাতে আকৌ যাতে বেছি শক্তিৱন্ত হৈ আগুৱাই যাব পাৰোঁ সেইখিনিয়ে। আৰু নাৰী আগবাঢ়িলে আমাৰ গোটেই জগতখনেই আগবাঢ়িব, সেইখিনিয়ে আৰু।